डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो गो थ्रू विद दिस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सर्किट को देखते हैं। अ सर्किट, मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, is a closed path or a closed loop through which an electric current can flow. An electric circuit is made up of conducting wires and always contain a source of power supply, usually called battery. A switch is a device which is attached to a point in an electric circuit. An electric switch is a two-state device which is used for turning on, that is closed, and off, that is open, an electric light. A switching circuit normally contains source of energy, that is power, an output device, that is lamp, and one or more switches all connected by wires. Students, a statement is true or false. Thus, we studied operations only on two values T and F in logic. The electric switch have two states, closed and open, which is same as the value true and false of this statement. Also, the operation of switches in different positions in switching circuits are similar to the operations of logical connectives in the combination of statements in logic. It is possible to express the design of switching circuits through statement patterns. Using the law of logic, the statement pattern can be simplified. Therefore, it is possible to simplify the designs in a simple switch. Logic can be select the right position and the number of switches in electric switch or electric circuit. Dear students, if the current is passing through an electric circuit, it is closed switch, that is on. If the current is not passing through it, it is open switch, that is off. This is the close switch and this one is open switch. Since a logical statement is either true or false, there exists closed analogy between the switches and statements. There are two connectives and or to combine two statements. Similarly, there exist two methods of connecting two switches. Two switches can be connected either in series or in parallel. So first one देखते हैं, switches in series. Two switches S1 and S2 are connected in series as shown in this figure. If the two switches are in series, then the current will flow through the circuit only when both switches are closed. Therefore, we have situation like two statements forming a conjunction. Let P switch S1 is closed, Q switch S2 is closed. Then logically above circuit can be expressed as P and Q.
switching table or input output table for a connection in series is similar to that of P and Q. So dear students, जब switches series में connect रहते हैं, series means एक लाइन में कनेक्ट है, एक लाइन में कनेक्ट है, तो उसको कंजंक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंजंक्शन में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कंजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल हमने जो देखा है उसमें जब P और Q ट्रू रहते हैं देन इट्स कंजंक्शन इज ट्रू। और ये सेम एनालॉजी जो है इस सीरीज में कनेक्टेड स्विचेस भी रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर सीरीज में कनेक्टेड जो स्विचेस है इसको रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिकली, सो हम इसको कंजंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे P एंड Q, यानी सीरीज के लिए हम एंड का सिंबल यूज करेंगे। नाउ सेकंड वन इज स्विचेस इन पैरेलल। Two switches S1 and S2 are connected in parallel as shown in this figure. If the two switches are in parallel, then the current will flow through the circuit if S1 or S2 or both S1 and S2 are the switches are closed switches. Therefore, we have the situation like two statements forming a disjunction. Let P switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, then logically above circuit can be expressed as P or Q. Switching table or input output table for the connection in parallel is similar to that of P or Q. So student, जब parallelly दो switches connected रहेंगे इसको हम डिसजंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। डिसजंक्शन में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि डिसजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल है वो इस टू स्विचेस इन पैरेलल की एनालॉजी को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। यानी डिसजंक्शन का जो ट्रुथ टेबल है और स्विचेस इन पैरेलल दोनों सेम एनालॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर स्विचेस इन पैरेलल को हम डिसजंक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी वहाँ पर उसको डिफाइन करने के लिए हम सिंबॉलिकली डिफाइन करने के लिए और वाला कनेक्टिव यूज करेंगे। सो स्विचेस इन पैरेलल एंड स्विचेस इन सीरीज, ये दो कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लॉजिक के एप्लीकेशन स्विचिंग सर्किट में हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सर्किट्स सिंबॉलिकली एंड राइट द इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल। तो इसमें हमको गिवन जो सर्किट है इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और सेकेंड पार्ट में हमको उसका टेबल जो है ना कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल। सो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट गिवन सर्किट है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी सिंबॉलिक फॉर्म यानी कंपाउंड स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट पैटर्न रहता है और स्टेटमेंट पैटर्न में हम वेरिएबल P Q R से जो है ना स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो हम पहले इन स्विचेस को सपोज करेंगे इन टर्म्स ऑफ P Q R। लेट P switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, negation P switch S1 dash is closed and negation Q switch S2 dash is closed। So इस स्विच के इस सर्किट में दो स्विचेस S1 S2 यूज हुए थे, हमने इसको P और Q से डिनोट किया है और S1 डैश और S2 डैश को निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q से डिनोट किया है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, इन स्विचेस को इन टर्म्स ऑफ P Q R डिनोट करेंगे और उसके बाद उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो इस स्विच को हम ऑब्जर्व करते हैं। स्विच कैसी है, दो स्विचेस S1 S2 पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, यानी इसको डिसजंक्शन में डिफाइन करना है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद नीचे वाली जो लाइन है इसमें दो स्विचेस एक लाइन में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको एंड
यूज़ करते हुए इसको हम कनेक्ट करेंगे। और ये ब्लू वाला ब्लॉक और ये लाइन ये दोनों भी पैरेलल है, सो इनके बीच में हम डिसजंक्शन यानी इसको डिसजंक्शन में डिफाइन करेंगे यानी कनेक्टिव और यूज़ करेंगे। ये इसका मेथड है। लेकिन हम यहाँ पर एक सबसे इजी टेक्निक देखते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमको 3 चीज़ों का केयर करना है। फर्स्ट जो चीज़ रहेगी, फर्स्ट जो स्टेप रहेगी वो क्या होगी कि जब भी हम स्विचेस को देखते हैं, जैसे ये स्विचेस हैं, ये स्विचेस कैसे एक लाइन में है मीन्स ये सीरीज़ में है। सीरीज़ के मीनिंग क्या होते हैं? सीरीज़ मतलब सिंपल वे में हम कहेंगे कि एक लाइन में कनेक्टेड स्विचेस। सो एक लाइन में कनेक्टेड जो रहेंगे स्विचेस, उसको कनेक्ट करने के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म में एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। और ये S1 और S2 जो स्विचेस है ये पैरेलल है, एक के नीचे एक लाइन में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए और वाला हम सिंबल यूज़ करेंगे। और वाला सिंबल यूज़ करें मतलब ये कैसा था, एक स्विच है, उसके बाद दूसरा जो स्विच है वो इस लाइन से नीचे आ रहा है। जैसे ही एक स्विच का नेम लिख लेंगे और उसके बाद दूसरा स्विच उस दूसरी लाइन में, और वो दूसरी लाइन यहाँ से नीचे आ रही है। तो जब भी हमको आना है तब हम और वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और एक लाइन में जब स्विचेस बढ़ रहे हैं तब वहाँ पर एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप रहेगी। सेकेंड, जब भी हमको नीचे आना है तो हम कभी हमेशा लेफ़्ट साइड से नीचे आएंगे। लेफ़्ट साइड से नीचे जो है ना, नीचे की तरफ जो है ना आएंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करते वक्त। ये सेकंड स्टेप रहेगी। थर्ड वाली ये स्टेप ये रहेगी कि जैसे ही एक लाइन में 2 स्विचेस आ रहे हैं, 2 और मोर देन 2 स्विचेस रहेंगे एक लाइन में, तो उसको हम एक ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे। और एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो उस ब्लॉक को डिनोट करने के लिए एक ब्रैकेट, एक बॉक्स ब्रैकेट जो है ना या फिर कर्व ब्रैकेट जो है ना प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 स्टेप में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में एक स्विच है, एक स्विच S1 मीन्स सिंबॉलिकली वो P है, तो हम इसको P डिनोट करें। ये P है, नीचे आ रहा है मतलब और का सिंबल। सेकेंड स्विच S2, इसको हमने Q से डिनोट किया है, सो P और Q। और ये एक ब्लॉक था, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये P और Q, ये कंप्लीट हो गया एक ब्लॉक। और उसके बाद अब लेफ्ट साइड से नीचे आना, लेफ्ट साइड से नीचे आ रहे मीन्स और का सिंबल। नाउ इस लाइन में 2 स्विचेस है, लाइन मतलब एंड का सिंबल यूज़ करें। कहाँ यूज़ करेंगे? फर्स्ट स्विच एंड, ये आगे जब बढ़ रहे हैं हम तो वो सीरीज़ होता है, तो यहाँ पर एंड का सिंबल यूज़ करेंगे सेकेंड स्विच। तो फर्स्ट स्विच S1 डैश है, S1 डैश को हमने डिनोट किया है निगेशन P से, सो निगेशन P एंड निगेशन Q। 2 स्विचेस हैं इसलिए ब्रैकेट में हमने इसको डिफाइन किया। देयरफॉर ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करता है। नाउ ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमको इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल हमको डिफाइन करना है। तो ये हमारा गिवन ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, अभी हमने जो इस स्विच को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसके लिए हमको इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो हमने लॉजिक के फर्स्ट पार्ट में उसको देखा है, ट्रुथ टेबल को देखा है। सो ट्रुथ टेबल और इनपुट आउटपुट टेबल या स्विचिंग टेबल दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों के मेथड सेम रहते हैं, सिर्फ डिफरेंस 2 चीज़ों का है। एक नेम का है, वहाँ पर इनपुट ट्रुथ टेबल है, उसका नेम, टेबल का नेम ट्रुथ टेबल था, यहाँ पर टेबल का नेम इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल रहेगा। सेकेंड, वहाँ पर हम एंट्रीज जो है ट्रुथ टेबल में एंट्रीज लेते थे, कैपिटल T और कैपिटल F यूज़ करते थे। यहाँ पर हमको एंट्रीज 1 और 0 यूज़ करना है। T के जगह हम 1 यूज़ करेंगे और F के जगह 0 यूज़ करेंगे, और बाकी का मेथड जो है सेम रहेगा। तो इसके लिए इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है। सो फर्स्ट कॉलम P के लिए, सेकेंड कॉलम Q के लिए। निगेशंस भी अवेलेबल है, सो थर्ड कॉलम निगेशन P के लिए, फोर्थ कॉलम निगेशन Q के लिए।
फर्स्ट ब्रैकेट के लिए नेक्स्ट कॉलम, सेकंड ब्रैकेट के लिए नेक्स्ट कॉलम, इन ब्रैकेट्स को ए बी सपोज कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा ए और बी, ए और बी से कॉलम के हेडिंग्स हो गए। इनपुट्स, इनपुट्स को डिफाइन करना है। एंट्रीज, एंट्रीज क्या होंगे, फर्स्ट कॉलम में 2 1s रहेंगे और 2 zeros, और सेकंड कॉलम में 1 0 1 0। अब आगे का मेथड, जैसे हम ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी, इसमें हम स्टेटमेंट पी को सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपोजिट वैल्यू, पी वाला कॉलम है इसकी अपोजिट वैल्यूज, सो 1 1 का अपोजिट 0 0, 0 0 का अपोजिट 1 1। नेक्स्ट कॉलम निगेशन क्यू, कॉलम क्यू को सेलेक्ट करना है, उसकी अपोजिट वैल्यूज हमको मिलेंगे 0 1 0 1। नेक्स्ट कॉलम पी और क्यू, इसमें स्टेटमेंट्स पी क्यू है, इनको सेलेक्ट करना है। और के लिए पॉसिबिलिटी, और के लिए पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, बोथ जीरोस देन 0 अदरवाइज 1, सो बोथ जीरोस देखना है, तो बोथ 0 यहाँ पर लास्ट वाली पॉसिबिलिटी में, सो ट्रूथ वैल्यू इसकी हमको मिलेगी 0, अदर्स में 1 रहेगा। नेक्स्ट कॉलम निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, स्टेटमेंट्स निगेशन पी निगेशन क्यू है, इन कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और एंड की पॉसिबिलिटी देखते हैं, एंड में बोथ वंस देन 1 अदरवाइज 0, सो बोथ वंस देखते हैं, 1 1 कहाँ पर है, इन दोनों कॉलम्स में 1 1 1 1 कहाँ पर है, सिर्फ लास्ट वाली पॉसिबिलिटी में है, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू 1 रिमेनिंग 0, कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम ए और बी, इसमें स्टेटमेंट्स है ए बी को हमने सेलेक्ट किया, इसमें और वाली पॉसिबिलिटी बोथ 0 देखना है, बोथ 0 कहीं भी नहीं है, देयरफॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज 1 रहेंगी। सो इस तरह हम एप्लीकेशन में इनपुट आउटपुट टेबल को इस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, सेकेंड ये स्विच है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो हम पहले वेरिएबल्स को डिनोट करेंगे, S1 S2 P, S1 S2 S3 तीन स्विचेस है, सो इनको P Q R सपोज करेंगे, ये निगेशन P हो जाएगा और ये निगेशन Q हो जाएगा। सो P स्विच S1 इज क्लोज, Q स्विच S2 इज क्लोज, R स्विच S3 इज क्लोज, negation P switch S1 dash is closed, negation Q switch S2 dash is closed, therefore the symbolic form of given switch is। now इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट है ये फर्स्ट लाइन में 2 स्विचेस हैं, लाइन में मीन्स सीरीज में, एंड का सिंबल यूज करना है, फर्स्ट स्विच एंड सेकंड स्विच, सो फर्स्ट स्विच का नेम है P, इसको हमने P से डिनोट किया, सो P एंड Q, एक लाइन कंप्लीट, सो ब्रैकेट भी यूज करेंगे। उसके बाद नीचे आ रहे मतलब और का सिंबल, सेकेंड लाइन में 2 स्विचेस है मतलब एंड में, सो फर्स्ट स्विच एंड सेकेंड स्विच, फर्स्ट स्विच को हमने डिनोट किया है निगेशन P, सो निगेशन P एंड निगेशन Q, 2 स्विचेस एक लाइन में थे, उसके लिए ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्लॉक, ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए एक बॉक्स ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे। अब करंट जो है यहाँ से आगे बढ़ रहा है मतलब सीरीज है, लाइन में जा रहा है मतलब ये सीरीज रहेगा, तो इसके लिए हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपली 1 स्विच है, उसका नेम है S3 को हमने डिनोट किया है R से, सो R, सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विच। उसका इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो उसके लिए नंबर ऑफ स्विचेस स्टेटमेंट्स कितने 3 है, तो P Q R के लिए कॉलम्स, निगेशन P के लिए कॉलम, निगेशन Q के लिए कॉलम, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए कॉलम, सेकंड ब्रैकेट के लिए कॉलम, इनको A B सपोज कर लेते हैं, सो ये बॉक्स ब्रैकेट का सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा, सिंपल फॉर्म मिलेगा A और B। नाउ कंप्लीट को डिफाइन करना है, तो उसको पहले हम C, इस बॉक्स ब्रैकेट को C से डिनोट कर लेते हैं, सो ये सिंपल फॉर्म में होगा C एंड R। नाउ 3 स्टेटमेंट्स है, इनके लिए एंट्रीज, फर्स्ट कॉलम में 4 1s 4 zeros, सेकेंड कॉलम में 2 1 2 0 2 1 2 0, एंड थर्ड वाले कॉलम में रहेगा 1 0 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P स्टेटमेंट इस P वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, अपोजिट वैल्यूज आ जाएगी उसकी 4 zeros 4 1s। नेक्स्ट कॉलम निगेशन Q वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपोजिट वैल्यूज मिलेगी हमको 0 0 1 1 0 0 1 1, कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम P एंड Q कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, एंड वाली पॉसिबिलिटी बोथ वंस, इन दोनों में बोथ वंस, फर्स्ट 2 में 1 1 है, सो ये 1 1 हो जाएगा, रिमेनिंग जीरोस।
नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इसमें स्टेटमेंट्स है निगेशन पी निगेशन क्यू, इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड वाली पॉसिबिलिटी बोथ वंस, इनमें बोथ वंस लास्ट में रिमेनिंग जीरोस। नेक्स्ट कॉलम ए और बी, स्टेटमेंट्स ए बी, इनके कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। और वाली पॉसिबिलिटी बोथ जीरो कहाँ पर है, ये इन पॉसिबिलिटी, ये इनमें जीरो जीरो ऐसे ये इनके ट्रुथ वैल्यूज जीरो मिलेगी, रिमेनिंग्स 1। एंड लास्ट कॉलम इज सी एंड आर, स्टेटमेंट है सी और आर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉलम है, इनमें ऑब्जर्व करना है। एंड की पॉसिबिलिटी बोथ वंस कहाँ पर है, उनको हम डिफाइन करते हैं। ये बोथ वंस यहाँ पर थे, रिमेनिंग जीरोस। सो इस तरह ये इसका स्विचिंग टेबल कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जांपल, ये स्विच है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसमें स्विचेस है S1 S2 S3, सो इनको P Q R सपोज करेंगे और S1 डैश के लिए निगेशन P डिनोट करते हैं। सो ये हमने स्विचेस को डिफाइन किया। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। करंट जो है यहाँ से यहाँ पर आया, ये S1 मतलब एक स्विच है, नीचे आ रहा है मतलब R दूसरा स्विच, तो इसको हमने डिनोट किया था P से, P R Q। एक कंप्लीट हो गया इतना ब्लॉक, उसको ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद करंट जो है यहाँ से पास हो रहा है, आगे एक लाइन में जा रहा है, मतलब सीरीज एंड का सिंबल। एक ही स्विच है S2, उसको हमने डिनोट किया है Q से। फिर करंट जो है लाइन में पास हो रहा है, यानी सीरीज में, देयरफॉर एंड का सिंबल आएगा। और ये करंट अब यहाँ ऊपर आया, ऊपर आने पर ये फर्स्ट स्विच और सेकेंड स्विच, तो फर्स्ट स्विच का नेम है S3 को हमने डिनोट किया है R, सो R और निगेशन P, और इसको ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे इतने वाले ब्लॉक को, तो ब्रैकेट आ गया। सो ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ इसके लिए इनपुट आउटपुट टेबल, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स P Q R 3 है, 3 स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सो इनके कॉलम्स को डिनोट करते हैं, फर्स्ट P, सेकेंड Q, थर्ड R, फोर्थ रहेगा निगेशन P, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, और उसके बाद कंप्लीट के लिए पहले हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को ए बी सपोज कर लेते हैं, ए बी सपोज किया है। अब इसको कंप्लीट फॉर्म में डिनोट करना है, लास्ट वाले एक ही कॉलम में इन सबको डिफाइन कर देते हैं, ये ए एंड Q एंड B। तो इस लास्ट वाले कॉलम में हमने 3 स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लिया है। इसको अल्टरनेट वे में हम any2 को सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ थर्ड वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली तीनों के लिए भी एक ही कॉलम में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इनके एंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, ये उसके एंट्रीज आ गए। नेक्स्ट कॉलम है निगेशन P वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसकी अपोजिट वैल्यू, सो 4 zeros 4 ones। नेक्स्ट कॉलम है P और Q, स्टेटमेंट PQ को सेलेक्ट करना है, और की पॉसिबिलिटी बोथ जीरोस कहाँ पर है, लास्ट 2 में, रिमेनिंग वंस। नेक्स्ट कॉलम R और निगेशन P, सो इसमें स्टेटमेंट्स है R निगेशन P, इनको सेलेक्ट किया हमने। और की पॉसिबिलिटी देखते हैं, और की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोनों में 0 है, रिमेनिंग 1 रहेगा। नहीं, लास्ट वाले कॉलम को देखना है। लास्ट वाला कॉलम में 3 स्टेटमेंट्स है A Q B, तो इन तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। सो ये हमने तीनों कॉलम्स को, ये जो ग्रीन एरो हेड्स हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है। हम इन तीनों कॉलम्स में साइमल्टेनियसली 1 देखना है, जैसे 1 1 1, एंड के लिए पॉसिबिलिटी 1 चाहिए, ऑल वंस। सो तीनों कॉलम्स में 1 1 1 है, सो फर्स्ट की ट्रुथ वैल्यू हमको 1 मिलेगी। इसी तरह हमको तीनों में 1 1 देखना है, सो ये फर्स्ट 1 मिलेगा। नेक्स्ट 1 1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 1 1, सो ये वाली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ पर 1 है 1 1, सो इसकी भी ट्रुथ वैल्यू 1, रिमेनिंग 0 रहेगी। सो इस तरह इसका इनपुट आउटपुट टेबल कंप्लीट हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसका रिवर्स फॉर्म देखना है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा था स्विचिंग सर्किट गिवन थी, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है, इसको स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी, ये जो P Q R है और निगेशन P निगेशन Q है, इनको स्विचेस के फॉर्म में हम जो है ना डिफाइन करते हैं। जैसे हमने वो लास्ट 3 सम्स में देखा था, सेम मैनर में इसको हम
इनको सपोज करते हैं। सपोज करने के लिए P को हम लिखते हैं लेट P S1 switch S1 is closed, Q switch S2 is closed, R switch S1 S3 is closed, negation P switch S1 dash is closed, negation Q switch S2 dash is closed. Now switching circuit. अब स्विचिंग सर्किट में इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ों का केयर करना है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमने स्विच को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त क्या देखा था, पैरेलल रहेंगे और का सिंबल, एक लाइन में रहेंगे एंड का सिंबल, लेफ्ट साइड से नीचे आना है और उसके बाद एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया उसको ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे। एक लाइन में नंबर ऑफ स्विचेस 2 और मोर रहेंगे उसके लिए ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे। अब रिवर्स फॉर्म हमको देखना है, स्विच में इसको कन्वर्ट करना है, तब हमको क्या केयर करना है, उसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे P है तो यहाँ पर P एक स्विच को डिनोट करेगा, तो पहले हम एक स्विच बना लेते हैं। P एक स्विच आ गया, उसका नेम दे देते हैं। P के लिए क्या था S1, तो S1 ये आ गया। और का सिंबल आया और के लिए, तो यहाँ पे हमको केयर करना है। और के लिए हम क्या करते थे, नीचे आते वक्त और का सिंबल यूज़ करते थे हम। अब यहाँ पर जब भी और का सिंबल आएगा तो हमको लाइन जो है ना ट्रेस करना है, और लाइन कैसा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, यानी 2 लाइंस जो है ना ट्रेस करेंगे हम, ये और के लिए। उसके बाद ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में निगेशन Q एंड P है, मतलब मिडल में कनेक्टिव एंड है। एंड रहेगा तो एक लाइन में 2 स्विचेस, ये फर्स्ट स्विच एंड सेकेंड स्विच, तो एक लाइन में 2 स्विचेस बना लेते हैं। ये 2 स्विचेस आ गए, इनके नेम देते हैं। निगेशन P के लिए S1 डैश, Q के लिए S2, ये कंप्लीट हो गया। बॉक्स ब्रैकेट है और ये बॉक्स मतलब ये भी एक ब्लॉक में कंप्लीट हो गया। और है तो पैरेलल 2 लाइंस ट्रेस करना है, तो इसके मिडल में से 2 लाइंस लेंगे, लेफ्ट और राइट से 2 लाइन इस और के लिए हमने ट्रेस किया। नाउ नेक्स्ट जो बॉक्स ब्रैकेट है इसमें हम फर्स्ट ब्रैकेट का टाइप कैसा है, निगेशन Q एंड R, एंड मीन्स लाइन, एक लाइन में 2 स्विचेस, तो एक लाइन में 2 स्विचेस बनाना है। और ये बॉक्स ब्रैकेट है मतलब एक कंप्लीट एक सेपरेट ब्लॉक रहेगा, ऐसे ही ब्लॉक रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर एक फर्स्ट 2 स्विचेस बना लेते हैं, एक लाइन में 2 स्विचेस, उनके नेम देंगे। निगेशन Q S2 डैश, R S3, और का सिंबल है, और का सिंबल यहाँ से लेंगे हम, इसके लेफ्ट और राइट से 2 लाइन ट्रेस करेंगे इस और के लिए। उसके बाद एक ही स्विच है, निगेशन P एक सिंपल स्विच है, तो इस यहाँ पर एक स्विच हमको ट्रेस करना है और उसका नेम रहेगा निगेशन P इज S1 डैश। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए क्या रहेगा, ये दोनों लाइंस यहाँ से हम जो है ना ज्वाइन कर लेंगे और इसके मिडल में से 2 लाइन नीचे लेंगे और साथ में उसको बैटरी और लैंप जो है ना अटैच कर देंगे। तो ये हमारा स्विचिंग सर्किट जो है कंस्ट्रक्ट हो गया। सेकेंड, सो ये स्टेटमेंट पैटर्न है। फर्स्ट स्टेप सपोजिशन रहती है, तो हम सपोज करते हैं लेट P, Q और R को हम डिनोट करेंगे S1 S2 S3 स्विचेस क्लोज्ड फॉर्म में। निगेशन P और निगेशन R को डिनोट करेंगे, निगेशन P इज S1 डैश और निगेशन R इज S3 डैश। और यहाँ पर एक बात का केयर रखना है कि जब भी हम स्विचेस को लेते हैं तो कन्वीनियंटली हम ऑल स्विचेस क्लोज लेते हैं। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस है कि हमने P Q R को अगर ओपन लिया तो P जो है क्लोज फॉर्म में मिलेगा, ये दोनों क्लोज में मिलेगी। अगर इसको हमने क्लोज लिया तो इसमें ये ओपन हो सकते हैं, या फिर हम थर्ड जो ऑप्शन है इसका कि कन्वीनियंटली हम ऑल स्विचेस को जो है ना क्लोज डिफाइन करते हुए सम्स को जो है ना सॉल्व करें। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप में स्विचेस को जो है ना डिफाइन किया हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म जो गिवन थे वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म, इसको स्विचेस में हमने सपोज किया है। नो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट जो ब्रैकेट है स्विचिंग सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 स्विचेस है, लेकिन यहाँ पर एंड का सिंबल यूज हो रहा है। एंड मतलब एक लाइन में 1 स्विच सेकेंड थर्ड, यानी 3 स्विचेस एक लाइन में हम पहले ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद उनके नेम देते हैं P S1 Q S2 R S3। और का सिंबल है तो इसके दोनों साइड से 2 लाइन ट्रेस करेंगे। और के लिए दोनों साइड से लेफ्ट और राइट में 2 लाइन हमने पैरेलली ट्रेस किए।
ना ये बॉक्स ब्रैकेट मतलब एक सेपरेट ब्लॉक है उसमें फर्स्ट स्विच और है मतलब क्या रहेगा, पैरेलल। सो ये फर्स्ट लाइन का स्विच और ये सेकेंड लाइन के स्विच रहते हैं। तो पहले हम ये फर्स्ट लाइन में निगेशन पी मतलब फर्स्ट लाइन में एक स्विच को ट्रेस कर लेते हैं। निगेशन पी एक स्विच है तो एक स्विच हमने यहाँ पर ट्रेस किया, उसका नेम प्रोवाइड किया है निगेशन पी के लिए S1 डैश। और का सिंबल है तो इसके पैरेलल यहाँ से हमको ट्रेस करना है क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है। ये और का सिंबल तो ये फर्स्ट लाइन के स्विचेस या सेकेंड लाइन के, तो और तो ये पैरेलली दो लाइंस यहाँ से ट्रेस करना है। सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें एंड का सिंबल है मतलब ये एक लाइन में दो स्विचेस हैं। सो एक लाइन में यहाँ पर दो स्विचेस हम ट्रेस करते हैं। उसके बाद Q इज़ S2 और निगेशन R इज़ S3 डैश। अब इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ये दोनों को यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद इनके मिडल में से दो लाइंस ट्रेस करना है और उसको बैटरी और लैम्प जो है ना अटैच कर लेंगे। सो इस तरह ये स्विचिंग सर्किट जो है ना हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो लास्ट हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन में इन स्विचेस को डिनोट कर लेते हैं हम, यानी इन P Q R ये वेरिएबल्स को हमने स्विचेस के फॉर्म में डिनोट किया हुआ है। देयरफॉर द स्विचिंग सर्किट इज स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स ब्रैकेट है, एक कंप्लीट ब्लॉक रहेगा ये। इसमें फर्स्ट ब्रैकेट है P एंड Q, एंड का सिंबल मतलब ये दो स्विचेस एक ही लाइन में, तो दो स्विचेस एक लाइन में पहले हम ट्रेस कर लेते हैं। उनके नेम P S1 R S3 और का सिंबल, सो इसके दोनों साइड से पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट ब्रैकेट निगेशन Q एंड निगेशन R, एंड आया मतलब दो स्विचेस अगेन एक ही लाइन में है। सो यहाँ पर दो स्विचेस ट्रेस करेंगे, उनके नेम निगेशन Q S2 डैश, निगेशन R S3 डैश। ये बॉक्स ब्रैकेट क्या डिनोट करता है, एक ब्लॉक को, तो ये कंप्लीट एक ब्लॉक है। अब और का सिंबल, सो इन ब्लॉक के मिडल में से दो, ये इस और के लिए दो पैरेलल लाइंस लेफ्ट और राइट में इसके मिडल से लेते हैं। अब नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें एंड का सिंबल है, दो स्विचेस है तो दो स्विचेस यहाँ पर हम बना लेंगे, दो स्विचेस एक ही लाइन में, उनके नेम निगेशन P के लिए S1 डैश, ये निगेशन R इज S3 डैश। कंप्लीट हो गया। नाउ इसके मिडल में से दो लाइंस लेना है, बैटरी और लैंप इसको अटैच करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने लॉजिक के एप्लीकेशन स्विचिंग सर्किट में देखे हैं। उसमें हमने सिर्फ दो कंसेप्ट को यूज़ किया है, स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस इन पैरेलल। स्विचेस इन सीरीज मतलब लाइन रहेगा तो वहाँ पर एंड का सिंबल यूज़ करेंगे हम। स्विचेस इन पैरेलल रहेगा तो और का सिंबल यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर दो टाइप के सम्स देखे। फर्स्ट वाले टाइप में स्विच गिवन था, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना का मेथड्स देखा हमने, और सेकंड में उसका रिवर्स पार्ट स्टेटमेंट को स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट करने का मेथड देखा है। तो इजी मेथड है, जो मैंने इजी मेथड आपको सिखाया है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।